Before we start, let me give you a very quick and very important information that we are currently present in OTM. You can go to Geo World Convention Center and visit us on booth PI350. So we have a booth there, and our whole team you will find from all the verticals there. You can go meet, hang out with them, check our new product like Volt API. So it will be a very good experience for all of you. Let me share my screen with you all. I also request you all to share if you have any questions regarding TraftClan or any doubts on the live chat box. And during the PPT segment, you can drop your questions live there. I will try to pick as much as I can today and will answer them during the presentation or after the presentation. Okay, we will wait for 5 more minutes. Few more people will be joining through. Kindly stay tuned because with this webinar, I don't think you will ever need any other classes session regarding the North Vietnam, because I will be giving you very in-depth knowledge, and from very small to all the big thing, you will get to see all the major attraction live, what are they and what's the major USP you can pitch to your clients. Okay, we can start now. We have sufficient number of people with us, so we can start with this webinar. So first of all, my name is Shaurya Pratap Singh. I had contracting for Maldives and Vietnam here in TraftClan. And some of you might also have interacted with me during bookings and post bookings. So today, as I told you earlier, I will be taking this comprehensive whole session for North Vietnam only. This will be a I can say a very good experience for all of you, because I will be covering all the small to all the big things. I will be giving you a live demonstration with pics and videos how North Vietnam is actually is. Okay, so starting with our first slide. So I will first give you a overview of Vietnam. So this is very important. First of all, Xin Chào, everyone. Xin Chào is basically Namaste in Vietnamese. So whenever your guest or you visit Vietnam, our on-ground team will welcome you with this Xin Chào greeting. Uh, Few things about Vietnam. First of all, the capital is Hanoi. Official language is Vietnamese and currency is Vietnamese dong. It is equivalent to 24,500 USD, somewhere around. And population of Vietnam is almost 1/15 time of India.
You can see it's almost 10 crore, and on the other hand, India is almost 150 crores right now. And mainly it's dominated by Buddhism religion. And it's a South Asian country famous for its beaches, rivers, Buddhist pagodas, cities, and iconic, you can say the monuments are there. Rich history is there in Vietnam. Okay, so talking about, this is the Vietnam map. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वियतनाम का मैप है यहाँ पर। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ड्रैगन शेप। अगर आप देखेंगे तो एक ड्रैगन की शेप में है ये, पूरा टॉप से बॉटम। और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, चाइना। और अगर वाटर से बात करें तो इस मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड ब्रूनी। अब ये नेबरिंग कंट्रीज आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वियतनाम, काफी सारे लोग अकेला वियतनाम का पैकेज नहीं लेते हैं। काफी लोग कंबोडिया एंड वियतनाम लेते हैं, ये लोग थाईलैंड एंड वियतनाम करना चाहते हैं, कहीं मलेशिया एंड वियतनाम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री से आप इजीली वियतनाम कर सकते हैं साथ में क्लब करके। सिंगल वियतनाम अपने आप में एक बहुत अच्छी माइस और एफआईडी डेस्टिनेशन है। उसके अलावा ये सारी कंट्रीज आपको एक डिफरेंट पैकेज बनाने का ऑप्शन देती है कि आपने एंकोर वाट, कंबोडिया में एंकोर वाट का पैकेज बनाया विद होचिमिन के, ये हनोई के होचिमिन मुजोलिनियम के साथ। तो आप ऐसे करके मार्केट भी कर सकते हैं काफी इजीली। और टूरिस्ट की बात करें तो 2023 में वियतनाम ने 1.26 करोड़ टूरिस्ट को वेलकम किया था, जो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स था प्रीवियस ईयर के। तो आप देख सकते हैं किस रैपिड उसके साथ वियतनाम ग्रो कर रहा है और अपने आप को एक स्टैब्लिश कर रहा है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ऑन द मैप। ठीक है, इसमें अगर आप इंडिया का नंबर देखें तो इंडिया स्टिल नाइन्थ सोर्स मार्केट है। ओनली 4 लाख टूरिस्ट गए थे, और वियतनाम के पास इतना स्कोप है कि ये जो 4 लाख है 40 लाख में आने वाले टाइम में हो सकता है पैक्स। तो मार्केट बूम भी कर रहा है, अभी मार्केट भी हुआ है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वियतनाम पिक करने के लिए। ठीक है, अगर हम वियतनाम की मैप की बात करें तो वियतनाम को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहले नॉर्थ वियतनाम, जो नॉर्थ की साइड मेजर सिटीज हैं, जिसमें हमारा सापा, हनोई, फोंगना, हालोंग बे, ये हमारा नॉर्थ वियतनाम है। देन मिडिल वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल वियतनाम, जिसमें आता है दनांग, होयान, हुए। और उसके बाद आता है हमारा साउथ वियतनाम, जिसमें होचिमिन और फुकॉक आइलैंड आता है। तो हमने इस 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है वियतनाम को। जब भी आप अपने गेस्ट से बात करते हैं तो आपको हमेशा उससे पूछना है कि वो कौन सा वियतनाम एक्सपीरियंस करना चाहता है, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, या तीनों करना चाहता है, क्योंकि तीनों अपने आप में बहुत अलग है। और इसका रीजन है वियतनाम की, अगर आप जियोग्राफी देखें तो वियतनाम नॉर्थ से साउथ मतलब काफी स्ट्रेच्ड है। ये एक वाइड कंट्री नहीं है। अगर लॉन्गिट्यूड वाइज बात करें तो काफी अ, काफी नॉर्थ से साउथ तक काफी फैली हुई कंट्री है। तो आप, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि इंडिया काफी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप कितने डाइवर्स वेदर्स देख सकते हैं। तो उस पे भी मैं आता हूँ अभी, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इंडिया और वियतनाम को हम कंपेयर करके इजीली वियतनाम सेल कर सकते हैं। तो अगर नॉर्थ वियतनाम की बात करूं, मैंने बता दिया था हनोई, हालोंग, ये वाला पार्ट नॉर्थ वियतनाम कहलाया जाता है। फिर मिडिल सेंट्रल वियतनाम में ये सारी सिटीज आती हैं, इनको हम आगे जाके इन डेप्थ में समझेंगे अभी। और साउथ वियतनाम में हमारे पास फुकॉक आइलैंड, होचिमिन और मेकोंग डेल्टा है। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि आ, ये वियतनाम के वेदर के बारे में, जिस बारे में मैं कह रहा था, जैसे नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ वियतनाम है। अब ये इंडिया हो गया हमारा। आप देख सकते हैं इंडिया के साइड में ऐसे वियतनाम आता है, और बिल्कुल मिडिल में ये, अगर आप मैप पे देखें तो इंडिया और वियतनाम बिल्कुल मिडिल में आता है, जिससे आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं वियतनाम का वेदर क्या होगा। इंडिया के टॉप में आपको क्या कैसा वेदर मिलता है, काफी कोल्ड, जैसे हमारे ये कश्मीर वाला ऐसा हो गया, हिमाचल हो गया, माउंटेन रीजन भी है। तो सेम वियतनाम का नॉर्थ वाला थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट रहता है वहां पर, प्लस हिली एरियाज है। तो आप इंडिया से इजीली कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल वियतनाम को। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं वियतनाम है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, सेंट्रल की बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, और मेजरली रेन फॉरेस्ट सारे सेंट्रल वियतनाम में जैसे हमारे इंडिया में आपको मिलते हैं। और साउथ थोड़ा हॉट और मानसून वहां पर रहता है, कि काफी सीजनल वहां पर रेन्स होती हैं, और काफी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है साउथ में, सिमिलर टू साउथ इंडिया। ठीक है, मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें तो अभी 4 मेजर एयरपोर्ट हैं। सबसे पहला हनोई में नोईबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दनांग में दनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
होची मिन में तांग सन नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फुकॉक में फुकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अर्लियर क्या प्रॉब्लम थी कि इंडिया से तीन एयरपोर्ट में फ्लाइट जाती थी, हनोई, दनांग, होची मिन। तो आपको अगर दिल्ली कोलकाता या दिल्ली या कोलकाता से जाना है तो आपके पास हनोई का ऑप्शन था, दनांग, होची मिन। तो आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट इन तीन सिटीज में ही रह सकता था। अगर किसी को फुकॉक घूमना होता था तो उसकी आइटनरी कैसे रहती थी, वो हनोई गया, दनांग गया, होची मिन गया, देन फुकॉक गया, उसके बाद फुकॉक से वापस होची मिन आता था, फिर एग्जिट फ्लाइट लेके इंडिया आता था। लेकिन अभी रिसेंट एक जॉइंट कोलैबोरेशन में वियत जेट ने एक फ्लाइट शुरू करी है जो डायरेक्ट फुकॉक से इंडिया की है। तो आपको अब डायरेक्ट आप फुकॉक में ही एंट्री भी ले सकते हैं और एग्जिट भी ले सकते हैं। कोलकाता से एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट है आपके पास, तो ये काफी अच्छा एक एवेन्यू ओपन हो गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल आप वियतनाम को इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं। सारे इंडिया में ट्रेन्स का बहुत अच्छा नेटवर्क है, वियतनाम में ट्रेन्स का बहुत अच्छा नेटवर्क है। मोटर बाइक्स प्रीडोमिनेटली वहाँ की पॉपुलेशन यूज करती है, सिमिलर टू इंडिया। फ्लाइट्स इजीली आजकल एक्सेसिबल, मैं बल्कि कहूंगा कि इंडिया से ज्यादा अच्छा अभी फ्लाइट्स का सिस्टम वहाँ पर है। जैसे वहाँ तो आपको 5000 के रेंज में आप किसी भी सिटी से किसी सिटी में जा सकते हो। ये छोटी कंट्री भी, ये भी रीजन है, लेकिन फ्लाइट्स काफी अच्छे नंबर में वहाँ पर उड़ती हैं। ठीक है, बसेस काफी सेम इंडिया की तरह काफी रिलायबल है, बसेस भी, और चीपर ऑप्शन भी रहते हैं। बाईसाइकिल वहाँ के लोग काफी यूज करते हैं अभी भी। और टैक्सीज भी काफी अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्री डोमिनेंट वहाँ का ट्रेन है जो लोकल लोग काफी यूज करते हैं। वेदर मैंने आपको बता दिया था। अब फेस्टिवल्स, ये 8 फेस्टिवल होते हैं वियतनाम में थ्रू आउट द ईयर, जिसमें से टॉप 3 आपको, जिसका आपकी आइटनरीज, आपके ट्रैवल प्लान्स और आपकी गेस्ट को फर्क पड़ना चाहिए, वो ये 3 फेस्टिवल है। सबसे पहला है टेट हॉलीडे। ये कुछ नहीं, ये वियतनामीज का लूनर न्यू ईयर है। ठीक है, जैसे हमारा एक तो हमारा वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से हम न्यू ईयर बनाते हैं, इनका वियतनामीज न्यू ईयर है, जो करीब आता है ये एंड ऑफ द जनवरी और स्टार्टिंग ऑफ, मतलब 24 27 इसकी डेट ईयर के हिसाब से चेंज होती है। जैसे इस बार ये 29 जैन से 31 जैन तक मनाया जा रहा है। तो इस टेट में क्या होता है, पूरा वियतनाम क्लोज होता है, इट्स लाइक दिवाली देयर। कोई भी वर्क नहीं कर रहा होता, तो प्राइसेस काफी हाई होते हैं। इवन आपके टूर्स वगैरह कैंसिल होने के भी काफी हाई चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग टेट हॉलीडे। उसके बाद आता है नेशनल डे। ये है जो वहाँ के कम्युनिस्ट लीडर थे, हो ची मिन, उनका बर्थ डेट होता है September 2। आप कंपेयर कर सकते हो 2 अक्टूबर से। यहाँ के हम गांधी जयंती बोलते हैं और नेशनल डे बोलते हैं। इस दिन भी सब कुछ ऑलमोस्ट क्लोज रहता है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एवरीथिंग। और एक आता है हमारा मिड ऑटम फेस्टिवल। ये टेट इज द लूनर न्यू ईयर, और टेट का जो हाफ होता है, यानी कि 6 मंथ जब टेट को हुए कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो मिड ऑटम फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ पर। इसमें भी ऑलमोस्ट सारी फेस्टिविटीज टेट जैसी रहती हैं। उसके अलावा बाकी ये रीजनल फेस्टिवल है, जो हुए में होता है, एक दनांग में दनांग फायरवर्क्स होता है। तो इससे आपको, मतलब अगर आपका क्लाइंट या आप उस पर्टिकुलर सिटी में है, तब आपको इस पे ध्यान देना है कि बाकी के ये 4 फेस्टिवल्स पे नहीं, तो ये 3 मेजर हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई भी आइटनरी सेट करने से पहले या फिर कोई भी प्लान्स बनाने से पहले। ओके, अब हम इस पूरे पीपीटी में नॉर्थ वियतनाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम, हनोई। ठीक है, सेंचुरीज ओल्ड आर्किटेक्ट, रिच कल्चर, सब कुछ आपको हनोई में मिलेगा। क्योंकि मतलब हनोई में सारी जो उनकी सिविल वॉर्स वगैरह हुई थी, उसका काफी इन्फ्लुएंस हनोई में था। मतलब हनोई में ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग दोनों तरफ की होती थी, और मेजरली जो फाइट हुई थी, जो वियतनाम वॉर थी, वो हनोई के अराउंड ही फाइट करी गई थी। ठीक है, ये एक शॉर्ट वीडियो है हनोई का, आपको एक ओवरव्यू देते हुए। ठीक है, जिस तरह आपने अभी वीडियो में देखा, एग्जैक्ट ऐसा ही है बिल्कुल हनोई। एक ऐसा नहीं है कि वीडियो हाइप करके बनाई गई है, इससे भी आप रियल में जाएंगे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल हनोई दिखता है। अब प्लेसेस की बात करें जो हनोई में मेजरली हमारे पास है विजिट करने के लिए, सबसे पहला आता है ओल्ड क्वार्टर, देन टेम्पल ऑफ लिटरेचर एंड हाउलो प्रिजन, होचिमिन म्यूजियम, दुरंग ताओ, ऑल्सो नोन एज ट्रेन स्ट्रीट, सेंट जोसेफ कैथेड्रल एंड साइक्लो टूर। इनके बारे में एक एक करके मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें, आप पैकेज लेते हैं तो एक हनोई सिटी टूर करके कंपोनेंट होता है। तो जो मैंने आपको हनोई की फेमस प्लेसेस दिखाई थी, ये सिर्फ एक टूर में मोस्टली कवर हो जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे हनोई सिटी टूर में आपका त्रांगवांग पगोडा, हो ची मिन्ह म्यूजियम, टेम्पल ऑफ लिटरेचर, वन पिलर पगोडा, हावलो प्रिजन, डोंगजोंग मार्केट, ऑलमोस्ट 60 to 70% चीजें सिर्फ हनोई सिटी टूर में हम कवर करा देते हैं। ये है त्रांगकॉक पगोडा। ये हनोई से थोड़ी सी दूरी पर एक स्मॉल आइलैंड में सिचुएटेड है, जहाँ पर आपको संपन बोट, वहाँ पर जो एक बोट राइड होती है ट्रेडिशनल संपन बोट राइड, वो बोट लेके आपको थोड़ी सी दूर, जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं जयपुर के लेक पैलेस से। जैसे आप पहले जब लेक पैलेस ओपन था आपको बोट लेके जाना होता था, सेम डिस्टेंस पे त्रांगकॉक पगोडा है। आप बोट लेके संपन बोट राइड लेके, उसका शॉर्ट टिकट होता है, हमारे पैकेज में इंक्लूडेड रहता है, बोट लेके जा सकते हैं और त्रांगकॉक पगोडा विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो ची मिन मुजोलिनियम है, ये फाइनल रेस्टिंग प्लेस है वहाँ के वियतनामीज लीडर का, जो पेन प्रेसिडेंट हो ची मिन का। अब काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि हनोई में क्यों है हो ची मिन म्यूजियम, ये हो ची मिन में क्यों नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि अब आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि गांधी का कोई मेमोरियल गांधीनगर में ही हो। सिमिलरली हो ची मिन एक लीडर थे, उनका जो मेमोरियल्स है वो कहीं भी हो सकते हैं ऑल ओवर द वियतनाम। ये थोड़ा फेमस है, लेकिन उनके आपको दनांग में भी मिलेंगे, हो ची मिन में भी मिलेंगे सारे उनके मेमोरियल्स। तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो लीडर हो ची मिन थे, उनका एक लास्ट विश थी कि वो अपना एक तरीके से जो समाधि है, मुजोलिनियम हम बोलते हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि कभी उनका बने। वो एक तरीके के से वो चाहते थे कि उनको एक्सह्यूम, उनकी बॉडी को जला दिया जाए, एक्सह्यूम कर दिया जाए, और जिससे उनका होने ना होने से कंट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े। और अ, वो एक साइलेंट, मतलब ऐसी कोई वो नहीं चाहते थे कि वो एज अ आइडल या फिर एज अ लीडर पोर्ट्रे हो आगे आने वाले फ्यूचर वियतनाम में। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो कंट्रीज में काफी सारे इशू चल रहे थे, और कंट्री को रीयूनिफाई एक ही चीज करती थी, वो थे प्रेसिडेंट खुद हो ची मिन। तो उनकी लास्ट विश को जो उस वक्त का मैनेजमेंट और हम कह सकते हैं गवर्नमेंट थी वियतनाम की, उन्होंने फुलफिल नहीं किया। उन्होंने उनकी बॉडी को यहाँ पर म्यूजोलिनियम बना के रखा, जिससे वियतनाम का जो कंट्री है नॉर्थ से साउथ, वो यूनाइट रहे हो ची मिन के नाम पे आज भी। तो कंट्री को यूनाइट करने के लिए उनकी फाइनल विश जो थी, वो वियतनामीज गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं करी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हो ची मिन म्यूजियम के पीछे। ठीक है, ये टेम्पल ऑफ लिटरेचर है। आप टेम्पल ऑफ लिटरेचर को कवर कंपेयर कर सकते हो, जैसे हमारे पास में हमारे पास नालंदा और तक्षशिला करके यूनिवर्सिटीज थी। सिमिलरली वियतनाम के पास जो उनकी पास्ट में यूनिवर्सिटी थी, वो उसे वो कहते थे टेम्पल ऑफ लिटरेचर। तो ये आजकल एक म्यूजियम है, आजकल इसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता, सिमिलर टू इंडिया के तक्षशिला और नालंदा की तरह। ठीक है, वन पिलर पगोडा है। आप पगोडा और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी एक चीज बताता हूँ। जब हम वियतनाम कल्चर में बात करते हैं, तो काफी लोग वो समझते हैं कि आइटनरीज वो देखने के बाद कि टेम्पल में वो हमें, कि टेम्पल में जाना है कि हम देखना चाहते हैं वहाँ के प्रेयर्स वगैरह कैसी होती हैं, या फिर टेम्पल का मतलब वहां पर ये नहीं होता कि असाइड टू, कि ऐसी साइड जहाँ पर प्रेयर्स हो। टेम्पल वहां पर किसी का भी हो सकता है, एक वर्ल्ड लीडर का भी हो सकता है, क्लास किसी पास्ट के वॉरियर का हो सकता है, वॉर विनर का भी हो सकता है, किसी का भी वहां पर टेम्पल होता है। लेकिन पगोडा इज द प्लेस की जहाँ पर गॉड को वर्शिप किया जाता है। ठीक है, तो आप टेम्पल और पगोडाज में कंफ्यूज ना होए। तो ये वन पिलर पगोडा आप देख सकते हैं, एक पिलर पे इन्होंने पूरा वो स्ट्रक्चर बनाया है, इसलिए से वन पिलर पगोडा कहा जाता है। लिंक हुई लेक के बीच में सिचुएटेड है। ये हाओलू प्रिजन है, जो इन फेमस इंडो चाइना वॉर हुई थी, तो उस वक्त ये प्रिजन बनाई गई थी। अब इंडो चाइना वॉर का मतलब इंडो चाइना के बीच नहीं हुई थी, ये जस्ट वॉर का नाम है क्योंकि इंडो चाइना प्लेट्यू में लड़ी गई थी। लेकिन इंडो चाइना वॉर के दौरान ये हाओलू प्रिजन बनाई गई थी, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा यूज हुआ था वो हुआ था ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। अब आप देख सकते हैं कि हाओलू प्रिजन का एक बहुत ही इनफेमस नाम पड़ा था वियतनाम वॉर के दौरान, जिसका नाम था हनोई हिल्टन। इसको हनोई हिल्टन क्यों बोलते थे लोकल लोग? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हिल्टन एक फेमस होटल चेन है जो अमेरिका में है। उस वक्त तो सिर्फ अमेरिका में थी, अब तो ग्लोबल है। तो हिल्टन से इसलिए बोलते थे क्योंकि सारे
POWs जो होते थे, प्रिजनर्स ऑफ वार, वो जो अमेरिकन होते थे वियतनाम वॉर के दौरान, उन्हें हाउलू प्रिजन में लाके रखते थे। और तो वो हाउलू प्रिजन को हनोई हिल्टन, यानी कि अमेरिकन के लिए हिल्टन बोलते थे वो। और यहाँ पर उन्हें काफी टॉर्चर किया जाता था, इनकी चीखने की आवाजें तक बाहर तक आती थी पूरे रात भर। इसलिए लोकल लोग इसे वो इग्नोर करके इसे बोलते थे नहीं कि अमेरिकन प्रिजनर अपने हिल्टन में है अभी। तो ये स्टोरी है हाउलू प्रिजन की। ठीक है, डोंग जोंग मार्केट ये काफी फेमस है, ये वियतनाम का सरोजनी माना जाता है। काफी चीप क्लोथ्स और चीप गुड्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट होके काफी सामान आता है। आप देख सकते हो चाइना के साथ हनोई का डिस्टेंस कितना है, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी काफी फ्लेक्सिबल है वहाँ पर। प्लस इम्पोर्ट भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लो है, तो आपको बहुत ही डर्ट चीप प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड क्लोथ्स मिल जाते हैं डोंग जोंग मार्केट में। एक मतलब वन टाइम तो मस्त है अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो। ठीक है, अब आते हैं नॉक्सोंग टेम्पल। जैसे मैंने कहा, ये टेम्पल जरूरी नहीं है गॉड का, ये भी एक एक्सप्लोरर के लिए बनाया गया था। जो वियतनाम आए थे एक्सप्लोर करने के लिए वियतनाम, उनको डेडिकेट करते हुए नॉक्सोंग टेम्पल बनाया गया था। और ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है जो नॉक्सोंग टेम्पल के लिए, मतलब मतलब आप इस ब्रिज से होके जाते हैं, फेमस ब्रिज है, आपने पिक्स में देखा होगा, इसे हुक ब्रिज बोलते हैं। तो इस ब्रिज से होकर आप नॉक्सोंग टेम्पल में एंटर करते हैं, और इसके नीचे होम किंग लेक है। तो ये जो नॉक्सोंग टेम्पल है, ये होम किंग लेक के मिडल में बना हुआ है। और आप इसे क्रॉस करते हैं हुक ब्रिज से। तो यहाँ पर तीन आपकी फेमस प्लेसेस कवर हो रही हैं, नॉक्सोंग टेम्पल, हुक ब्रिज एंड होम किंग लेक, एक कंपोनेंट में। ठीक है, ये फेमस इस ट्रेन स्ट्रीट आगे जैसे ड्रोंग जांग भी बोलते हैं। तो अब क्या हो गया कि वियतनाम में इतने टूरिस्ट आ रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल नेम्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह के अब नए जो मॉडर्न नेम्स है, ट्रेन स्ट्रीट, वैसे इस जगह का नाम ट्रेन स्ट्रीट नहीं है वियतनाम में, लेकिन अब हर जगह इंटरनेट पर आपको ट्रेन स्ट्रीट ही मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत फेमस है ये कैफेज और अपनी रात की नाइट लाइफ के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम में, दिन में आई थिंक 3 टाइम्स ट्रेन गुजरती है लोकल, जो लोकल वियतनाम की ट्रेन है। तो वही यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है, क्योंकि हर तरफ कैफेज वगैरह है कि आप कैफे में बैल्कनी में बैठे हैं, अपनी फेमस वियतनामीज कॉफी पी रहे हैं, और ये ट्रेन आती है, सब अपने शेड्स वगैरह, शॉप्स, इवन फर्नीचर हटाते हैं, और ये ट्रेन पास होती है धीरे धीरे। तो काफी यूनिक एक्सपीरियंस है ये। आई आई टोटली एग्री, आपको इंडिया में भी मिल जाएगा अगर आप दिल्ली के कुछ प्लेसेस में जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जो कैफे कल्चर है साथ में, वो नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, ट्रेन स्ट्रीट के बाद मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ, बहुत फेमस वहां पर होता है वाटर पपेट शो। पहले मैं आपको इसकी एक शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसा आपने देखा, ये फेमस वाटर पपेट शो है, जो एक मतलब एंशियंट वियतनाम की एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। आपने हमारे राजस्थान का फोक कल्चर में देखा होगा कि वो स्ट्रिंग से पपेट्री करते हैं पूरे, आज भी वहाँ पर शोज वगैरह अरेंज होते हैं। सिमिलर है ऑलमोस्ट, वहां पर स्ट्रिंग से होता है, यहाँ पर वाटर बेड के अंदर से वुडन स्टिक्स की मदद से पूरा पपेट्री शो किया जाता है। ये भी अपने आप में बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। आपको वाटर के अंदर से आर्टिस्ट पीछे कर्टेन के होते हैं, वाटर के अंदर से पूरे स्टोरीज डिपिक्ट करते हैं, कि लेजेंड्स की, पास्ट के स्टोरीज की, वियतनाम की, पूरे उसके कई सारे शोज और डिपिक्शन दिखाते हैं। हनोई का फेमस है, लेकिन आपको ये दनांग, हो ची मिन, हर जगह अलग अलग टाइप के वाटर पपेट शो मिल जाएंगे।
अब हम बात करेंगे हनोई साइक्लो टूर की। ये भी एक काफी फेमस कंपोनेंट है, जो काफी लोग हमसे इंक्वायर करते हैं कि साइक्लो टूर करना है सर, साइक्लो टूर के बारे में बताइए। तो साइक्लो टूर, काफी सारे एजेंट्स का मेरे पास कॉल आता है सर कि बाद में कि सर साइक्लो टूर मैंने ऐड कराया था लेकिन शायद हुआ नहीं है क्या, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन साइक्लो टूर को लेके नेक्स्ट लेवल रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बात करा था कि सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है साइक्लो टूर से, तो उन्होंने मुझे बताया था वो समथिंग कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे साइक्लो टूर की, ऑफ रोडिंग बाइक पे कुछ घुमाया जाएगा वियतनाम में, ठीक है, फोर व्हीलर में। लेकिन मैंने उनसे कहा सर कि ये साइक्लो टूर नहीं होता, एक्चुअल में साइक्लो टूर होता है ये, ठीक है, आप चौंकिए मत, वो इंडिया का ही रिक्शा है। वियतनाम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वियतनाम में जो आपके राइडर हैं वो जस्ट पीछे हो जाते हैं रिक्शा में। तो ये साइक्लो टूर है काफी फेमस, इसमें आपका ओल्ड क्वार्टर्स हो गए, हनोई के जितने भी फेमस एरियाज हैं वो कवर कराते हैं। 1 घंटे का ये साइक्लो टूर रहता है, ठीक है। तो मतलब ये भी अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है एक रिक्शा, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा हनोई कवर हो गया, ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट के बारे में हम जान चुके हैं। अब हनोई से थोड़ी सी दूरी पर ही 185 किलोमीटर एक पोर्ट सिटी है जिसे हम बोलते हैं हालोंग बे। ठीक है, हालोंग बे में क्या है कि आप हनोई में आए, हनोई में आपने स्टे करा, आपने अपनी कैब या फिर और अदर मोड ऑफ ट्रांसफर्स लेके आप पोर्ट पे पहुंचे हालोंग बे के। और वहां पर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की क्रूजेज होती हैं, आपको क्रूज का एक्सपीरियंस करने मिलेगा वियतनाम में ही, जैसे आप सिंगापुर में करते हैं। सिंगापुर में बहुत बड़ी बड़ी क्रूजेज होती हैं, उसके अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, लेकिन मीडियम साइज क्रूजेज आपको वियतनाम में मिल जाएंगी, जिसमें वो 1 डे क्रूज भी कराते हैं, यानी आपको डे में वो एक राउंड कराएंगे, उसमें एक्टिविटीज आपका कुछ फूड रहेगा, फिर 1 नाइट क्रूज देन 2 नाइट क्रूज, जैसे अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हनोई से हालोंग बे 185 किलोमीटर दूर है, जो ऑलमोस्ट 3 आवर्स आपको ड्राइव लगती है। और इसमें जो प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर जो हम रिकमेंड करते हैं वो SIC रखते हैं, क्योंकि प्राइवेट में ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 180 USD तक 2 लोगों के लिए कॉस्ट कर जाता है। तो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अपने सारे ट्रैवल पार्टनर और एजेंट्स को कि आप SIC टूर ही लें, क्योंकि सारे SIC हनोई सिटी सेंटर ओल्ड क्वार्टर्स में से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे जो सारे कॉन्ट्रैक्टेड होटल है वो सारे फेमस ओल्ड क्वार्टर के अराउंड ही है। तो आपको अपने होटल से निकलना है, आपकी SIC बस पिक करेगी और आपको सेफली वो हनोई हलोंग बे पोर्ट, कोई डिले और लेट होने का चांस भी नहीं है। ठीक है, हम एक एक करके अब क्रूजेस समझते हैं। ये डे क्रूज है, मतलब ये आपको ऑलमोस्ट 6 घंटे का एक्सपीरियंस आपका रहता है इसमें। आप हाँ लॉन्ग पे पहुंचे, आपने ये बोर्ड की डे क्रूज, तो इसका चेक इन अराउंड 11:30 रहता है। एक चीज मैं बताऊंगा, आप कोई भी क्रूज लीजिए, चाहे 1 नाइट 2 नाइट डे क्रूज, सबको ऑलमोस्ट चेक इन 11:30 पे रहता है, चेकआउट डिफरेंट हो जाता है। तो हमें किसी भी हाल में 11:30 से पहले हालोंग बे पहुंचना होता है, कि क्योंकि उसके बाद 12 बजे जो क्रूज है वो डॉक से निकल जाता है। उसके बाद क्रूज तक अगर आपका मिस हुआ एक बार, पोर्ट से निकल गया क्रूज, तो उस पे फिर ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है, फिर आपको प्राइवेट बोट लेके हमें क्रूज तक पहुंचाना होता है, तो हम कभी रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, अब मैं डे क्रूज के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें आपका लंच और डिनर इंक्लूडेड रहता है। अब मैंने लंच और डिनर क्यों बोला, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया 11:30 से 5:30 छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास लंच क्रूज भी है और डिनर क्रूज भी है। डिनर क्रूज हमारी 5:30 बजे के अराउंड स्टार्ट होती है और रात में आपको 10:30 11 के अराउंड वापस छोड़ देती है। ठीक है, और हमारे पास लंच और डिनर दोनों है, लेकिन हम प्रेफर ये करते हैं कि आप लोगों का, अगर आपके पास हलोंग बे का स्टे है, आप वहाँ पर आसपास रुक रहे हैं, तो आप डिनर क्रूज लें, अदरवाइज हम डे क्रूज ही रिकमेंड करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पोर्ट से निकलेंगे तो आपको ये क्रूज जो है सुमसॉक केव्स विजिट कराएगी, तितोव आइलैंड, एक कायाकिंग की एक्टिविटी रहेगी, लोअन केव्स आपको विजिट कराया जाएगा, और लोकल वियतनामीज कुकिंग क्लासेस रहती हैं इसमें, कि आपको एक डिश शेफ बना के दिखाएंगे और आपसे बनवाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 2 डे 1 नाइट वाली क्रूज। तो इसका चेक इन 11:30 होता है और नेक्स्ट डे 11:30 बजे इसका चेकआउट होता है। ठीक है, 2 डे 1 नाइट क्रूज में सारी मील्स आपकी रहती हैं, कि आप लंच से स्टार्ट करेंगे, फिर इवनिंग स्नैक्स और एक संडे पार्टी होती है इवनिंग के टाइम में। उसके बाद आपका डिनर रहता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डिपार्चर से पहले का ब्रेकफास्ट, तीनों मील्स इंक्लूड होते हैं। इसमें आपको कयाकिंग और बैम्बू बोट राइड दोनों का ऑप्शन मिलता है, कि अगर आप ट्रेडिशनल बैम्बू बोट राइड करना चाहते हैं तो आप बैम्बू बोट ले सकते हैं, या फिर आप कयाक लेके
आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसमें भी लोन केव और तितौव आइलैंड इंक्लूडेड रहते हैं। इसमें एक सनडेक पार्टी आपके पास आ गया, एक लाइव म्यूजिक होता है, ताइची क्लासेस आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दी जाती हैं, और सुमसौत के केव्स का भी इसमें विजिट रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 3 डे 2 नाइट क्रूज। अब इसमें क्या होता है, आप 11:30 बजे आपने चेक इन किया, नेक्स्ट डे यानी कि लास्ट डे पे आप 11:30 बजे चेकआउट करते हैं। इसे लान्हा बे क्रूज भी बोलते हैं। इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है, ये आइटनरी है। इसमें 2 डे 1 नाइट वाले तो सारे इंक्लूजन रहते हैं। उसके अलावा वियाथाई विलेज, डार्क एंड ब्राइट केव्स, और कैटबा आइलैंड, त्रुंग त्रांग केव एंड कैटबा नेशनल पार्क, ये सब और ऐड हो जाते हैं आपके नेक्स्ट डे पे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि 3 डे 2 नाइट वाली क्रूज को लान्हा बे क्रूज भी कहा जा सकता है। तो अगर आप रूट देखेंगे, तो इसमें आपको जहाँ पर क्रूज रूट में यू है, तो यू से आपका हालोंग बे पोर्ट है। तो अगर आपका वहां से स्टार्ट होता है, तो जो आपकी 2 डे 1 नाइट वाली क्रूज है, वो ये हालोंग बे का सर्कल का कवर करती है। मतलब ये हालोंग बे का एक सर्कल कंप्लीट करके ब्लू लाइन के अराउंड आके आपको वापस छोड़ देती है। ये होगी हमारी 2 डे 1 नाइट वाली क्रूज। अगर आप 3 डे 2 नाइट वाली क्रूज लेते हैं, देन वो ये ब्लू वाला सर्कल तो कवर करेगी, उसके अलावा ये रेड वाला लान्हा बे वाला एरिया भी कवर करेगी। तो इसलिए उसे लान्हा बे क्रूज भी कहते हैं कि हालोंग बे तो कवर हो रहा है, लान्हा बे भी कवर हो रहा है इसमें। उसके अलावा एक बाइतू लॉन्ग बे क्रूजेस भी होती हैं, जो इंडियन टूरिस्ट यूजुअली इतना प्रेफर नहीं करते, लेकिन अगर किसी को बाइतू लॉन्ग बे भी विजिट करना हो या घूमना हो, तो उसके भी क्रूजेस हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्रूज में मैं बता देता हूँ, ये तितौव आइलैंड है, जहाँ पर आपको क्रूज से एक छोटी बोट में ले जाके तितौव आइलैंड विजिट कराया जाएगा। फिर ये डार्क एंड ब्राइट केव्स, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसे डार्क एंड ब्राइट इसलिए बोलते हैं, जब कयाक लेके जाते हैं तो बाहर तो पूरी दिन में के टाइम एक्टिविटी होती है, रोशनी होती है, लेकिन आप एक पास से दूसरे पास जब जाते हैं, तो आप इस केव के अंदर से होके जाते हैं, तो कम्प्लीटली डार्क होती है। तो इसलिए डार्क एंड ब्राइट केव्स बोला जाता है। इससे ये हालोंग बे और लाना बे के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये कैटबा आइलैंड हो गया। यहाँ पर भी काफी सारी क्रूज डॉक होके इस कैटबा आइलैंड पे आपको ले जाती है। इसके बीच में एक लेक भी है, अलग से सिचुएटेड। तो आपके पास पूरा ऑप्शन होता है, अब यहाँ पर पार्टीज कर सकते हैं, लेक विजिट कर सकते हैं कैटबा आइलैंड की। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हालोंग में। हमारा डन है। आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं लाइव चैट बॉक्स में। फिर अब हम डिस्कस करेंगे निनमिन। ये ऑलमोस्ट 1.3 आवर्स की ड्राइव है हनोई से। निनमिन में मुआ केव्स, त्रांगान, तैमकॉक, खाओलू एंड बाइदिन पगोडा, ये सब कवर होता है। आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये फेमस मुआ केव्स है, ये मुआ माउंटेन पे सिचुएटेड है। ये आपको अगर इसका टॉप पे विजिट करना है, तो आपको 500 स्टेप चढ़ के, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको 500 स्टेप चढ़ के मुआ माउंटेन्स के टॉप पे पहुंचेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है। और इसके अंडरनीथ मुआ केव्स है, इस माउंटेन के अंडरनीथ मुआ केव्स है, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये त्रांगांग हो गया। ये अपने टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस है, और माउंटेन और केव के, मतलब आपको 3 आवर की संपन बोट राइड भी मिलती है इसमें। तो आप इसके ये यहाँ मतलब आप बोट, संपन बोट आप देख सकते हैं इस फोटो में। ये जो टूरिस्ट जितने भी हैं, ये ट्रेडिशनल संपन बोट के से त्रांगान घूमते हैं। तैमकॉक वैली हो गई एक। इसे हालोंग बे ऑन लैंड भी बोला जाता है, कि जो भी माउंटेन्स और नेचुरल ब्यूटी के शौकीन हैं, उनके लिए निनमिन वाला एरिया। अगर आप देखेंगे निनमिन में, सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं वो नेचुरल ब्यूटी के कर रहे हैं, चाहे वो मुआ केव्स हो गया, कांगान हो गया, या फिर तैमकॉक हो गया। तो उनके लिए मस्ट है, जिन्हें काफी नेचर पसंद है। फिर उसके बाद हम आते हैं हालो। ये एंशियंट कैपिटल भी माना जाता है। ये भी आजकल एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन हो चुका है टूरिस्ट के बीच में, क्योंकि वही कि आपको कि एंशियंट कैपिटल सिटी मिल रही है, इसमें सारा रिच कल्चरल हिस्ट्री प्लस नेचर के बीच में। ये बाइडेन पगोडा हो गया। ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है वियतनाम के अंदर। देख सकते हैं ये फेमस बुद्धा का यहाँ पर स्टैचू है, और ये पगोडा भी काफी दूर से विजिबल रहता है। बहुत ही सीरीन और शांत, बहुत बहुत अच्छी प्लेस है बाइडेन पगोडा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सापा पे। तो सापा ऑलमोस्ट 380 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हनोई से। और जो हम यहाँ पर रिकमेंड या सजेस्ट करते हैं, वो है हमारा स्लीपर बस के थ्रू टूर।
तो प्राइवेट ट्रांसफर तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं, ऑलमोस्ट 700 600 से 700 यूएसडी रहते हैं, क्योंकि आपका 380 किलोमीटर्स दूर है। तो हम हमेशा स्लीपर बस ही रिकमेंड करते हैं अपने सारे गेस्ट को और ट्रैवल पार्टनर्स को, क्योंकि एक तो स्लीपर बस कंफर्टेबल भी है, आप प्राइवेट ट्रांसफर लेके भी कैब में जाएंगे वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, 380 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं प्राइवेट ट्रांसफर के लेने से, एसआईसी ट्रांसफर के। इसके अंदर हमारा कवर होता है कैट कैट विलेज, पानसी पान माउंटेन और सिल्वर वाटरफॉल। ये हमारा कैट कैट विलेज है। ठीक है। ओल्ड वियतनाम मतलब कैट कैट विलेज काफी फेमस है, जिन्हें मतलब ये आपको काफी कोल्ड वाइज, मतलब आप कैसे कवर कर सकते हैं, आप कैट कैट विलेज को देहरादून या मसूरी वाले रीजन से कंपेयर कर सकते हैं। काफी ठंडा रहता है ये, क्योंकि टॉप की साइड है, यहाँ पर माउंटेन्स है। इवन सापा की साइड आपको इजीली स्नो भी मिल जाएगी अगर आप हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर जाएंगे। ठीक है, फांसी पान माउंटेन हो गया। फांसी पान माउंटेन में अगर अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो हमारे पास दो मोड रहते हैं। एक तो सबसे पहले आप केबल कार लेके एक पॉइंट तक रीच करते हैं। फिर केबल कार लेने के बाद आप एक फनिकुलर ट्रेन यहाँ आप लेते हैं, ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड होती हैं दोनों, केबल कार एंड फनिकुलर ट्रेन। तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेग पे केबल कार के थ्रू पहुंचते हैं, देन आप वहां पर उतरने के बाद फनिकुलर ट्रेन लेते हैं। ये माउंटेनस ट्रेन होती है जो एक एंगल पे अपवर्ड डिसेंड कर सकती है। तो फनिकुलर ट्रेन भी अपने आप में एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। केबल कार तो आपको इंडिया में करने मिल जाएगी, लेकिन फनिकुलर ट्रेन एक मस्ट है जो वियतनाम में ही आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनेशन रहती है। ये 3147 मीटर हाई बुद्धा का स्टैचू है। जब आप ये सबसे पहले केबल कार फनिकुलर ट्रेन लेके फांसीपान माउंटेन के टॉप पे पहुंचते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कि, और इसमें भी स्टेयर्स आपको काफी सारी चढ़नी पड़ती है फनिकुलर, लेकिन उसमें भी आपके सामने ऑप्शन है कि आप वहाँ पर थर्ड लेग का फनिकुलर ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। लेकिन इतना नहीं है, ये भी अपने आप में एक्सपीरियंस है, तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप थर्ड लेग लेग में भी फनिकुलर ट्रेन यूज करें। सिल्वर वाटरफॉल, ठीक है, बहुत फेमस है सिल्वर वाटरफॉल। इसे सिल्वर वाटरफॉल इसलिए बोला जाता है कि ये वाटर आपको सिल्वर का इफेक्ट देता है। जैसे अगर हम गोवा में बात करें दूध सागर वाटरफॉल की, तो वहाँ के लोकल लोग दूध सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिल्क का इफेक्ट देता है जब वाटरफॉल से पानी गिरता है। वियतनामीज लोगों ने इसको सिल्वर वाटरफॉल, इवन जो ट्रेडिशनल वियतनामीज नेम वो डिफरेंट होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन इज सिल्वर वाटरफॉल है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं वियतनाम में, जब भी आप ट्रैक प्लान के साथ हमारे साथ ट्रांजैक्ट करते हैं। तो एक तो अर्ली चेक इन का हमेशा एक होल नाइट का कॉस्ट होता है वियतनाम में। ठीक है, तो आप जैसे अगर आप हमसे रिक्वेस्ट करें कि 3 टू आपकी फ्लाइट 5 बजे मॉर्निंग में लैंड हो रही है, फिर आपको अर्ली चेक इन दिला दे, तो वियतनामीज में पूरे एक नाइट का आपका चार्ज लगता है विदाउट ब्रेकफास्ट वाला। अगर आपको ब्रेकफास्ट लेना है तो फुल नाइट का आपका चार्ज लगता है अर्ली चेक इन में। अगर आपके गेस्ट को जैसे हालोंग भी जाना है, कम लगेज लेके जाना चाहते हैं, तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टेड होटल है वहाँ पर आपका फ्री लगेज स्टोरेज रखवा देंगे। मतलब आपको अपने साथ पूरा हैवी लगेज लेके जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग होते हैं वियतनाम के। ठीक है, बहुत ही आपको कोई इशू नहीं आएगा। थोड़ा लैंग्वेज का इशू आता है बस, बाकी उसके अलावा कोई और इशू नहीं आता वियतनाम में। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ ओवरनाइट क्रूज, तो फ्लाइट आपको हमेशा 6 PM के बाद की करनी है, क्योंकि आपका जो हालोंग बे का क्रूज, आपने चाहे कोई भी क्रूज लिया, 2 डे 1 नाइट या 3 डे 2 नाइट वाला, वो सब 11:30 बजे पोर्ट पे डॉक होने आते हैं। वो आधा घंटा लेट भी हो गए तो 12 बजे वो पोर्ट पे डॉक होते हैं। फिर आपकी 3 आवर्स की जर्नी है, जिसमें अगर कुछ भी ट्रैफिक, या वैसे ट्रैफिक यूजुअली होता नहीं है, कुछ भी अगर हल्के से भी आप लेट हुए तो आपके पास एटलीस्ट इतना मार्जिन हो कि आप अपने होटल या सामान प्रॉपर उठा के एयरपोर्ट टाइम से चेक इन कर पाए और रीच कर पाए। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं जब भी आपके पास ओवरनाइट क्रूज हो तो हमेशा आप अपनी फ्लाइट 6 बजे के बाद की बुक करें। एक और सबसे अच्छी चीज जो मैं पहले बताना भूल गया, कि सारे रूम सी व्यू होते हैं हमेशा। ठीक है, सारे जितने भी हमारे रूम्स होते हैं वो सारे सी व्यू होते हैं, क्योंकि सिंगापुर की तरह ऐसा नहीं होता कि काफी सारे डेक्स होते हैं।
वियतनाम में कि मिडिल आइल भी है, उसमें रूम्स हैं कि आपके पास सी व्यू नहीं है, सारे एजेस पे ही रूम होते हैं, कि सारे कैबिन एजेस पे ही होते हैं, इतने बड़े क्रूजेस नहीं होते। तो आपको हर रूम में सी व्यू मिलेगा, ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपको सोचना ही नहीं है कि सी व्यू मिलेगा नहीं मिलेगा। और बेसिक सेलिब्रेशन हमेशा हर होटल और क्रूज में इंक्लूडेड रहते हैं, चाहे एनिवर्सरी हो, हनीमून हो, बेसिक चीजें आपको हमेशा फ्री मिल जाएंगी वियतनाम में। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब प्लीज अपने क्वेश्चन साथ के साथ लाइव जो चैट बॉक्स ओपन है यूट्यूब में उसमें ड्रॉप कर दी जाए, कि ऑलमोस्ट सेशन एंड पे ही है कि मैं पिक करके आप लोगों का आंसर दे पाऊँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ थोड़े। हाँ, एक ट्रैवल पार्टनर पूछ रहे हैं कि ये सेफ है ट्रैवल करना स्लीपर बस से सापा में। मैंने जैसा कहा कि हम रिकमेंड ही स्लीपर बस करते हैं, सबसे ज्यादा सेफ है क्योंकि हाईली एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं, क्योंकि साफा माउंटेनियस रीजन है, इसका मैं क्लासिक एग्जांपल आपको दूंगा। आप हिमाचल में एक हिमाचल ट्रांसपोर्ट की बस से प्रेफर करेंगे जाना या दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपके पास सेम आंसर है कि सापा हम सीजनल सीजन ड्राइवर होते हैं ये स्लीपर बस के, प्लस काफी कंफर्टेबल जर्नी रहती है। अगर आप कैब लेंगे तो आपको सिट मतलब बैठ के पूरी 380 आवर्स की जर्नी करनी पड़ेगी, स्लीपर बस में आप आराम से रिलैक्स होके जाइए। कोई रोड्स कंडीशन भी बहुत अच्छी है, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा स्लीपर बस में, और पैसों की अलग बचत है, वो एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है, और सारे हमारे पैकेजेस, एक और पैकेज के बारे में डिटेल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे और भी इतना पैकेजेस में डिटेल्स या कुछ कंपोनेंट ऐड करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इस पीपीटी के बाद भी कुछ भी डाउट हो नॉर्थ वियतनाम में, तो हमारे डेस्टिनेशन एक्सपर्ट आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा है। आप डायरेक्टली हमारे वियतनाम के पेज पे जाके डेस्टिनेशन एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं इवन लेट नाइट पे, कि आपको कोई अर्जेंट इंक्वायरी हो जानना हो, तो आपको पूरे अच्छे से एक्सपीरियंस हमारे डेस्टिनेशन एक्सपर्ट आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी आइटनरी बनाने में, प्लस आपकी कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर करने में। और प्लस हमारे लाइव पोर्टल पे जाके आप वियतनाम के पेज पे जाएंगे तो वहां पर आप अपनी आइटनरी खुद ही कस्टमाइज कर सकते हैं, कि आप जैसे ही वियतनाम का पैकेज चूज करेंगे आप उसमें सिटी वाइज कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो, उस पे आपके पास ऑप्शन है आप उसको प्राइवेट और एसआईसी। और ये मीन वाइल सब कुछ होगा कि आप जैसे ही प्राइवेट करेंगे तो वो कॉस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी, एसआईसी करेंगे तो उसकी कॉस्ट अपडेट हो जाएगी, और हर कंपोनेंट की आपको कॉस्ट वहां पर दिखती है। तो बहुत इजीली इजी हो जाता है। इवन अगर मैं बताऊं कि मैं 30 सेकंड में कोई भी वियतनाम का कोड बना देता हूँ हमारे पोर्टल से, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करें आपको हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे अपना पहला कोड बनाने में। तो ये बहुत ही अच्छा आपको एडेड एडवांटेज मिल रहा है। इसके अलावा एक और ट्रैवल पार्टनर मेरे से ये पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस मतलब कॉस्ट वाइज आपका पैकेज बेटर है या एक्सपीरियंस वाइज। तो इसका मैं आंसर ये देना चाहूंगा कि अगर आप ट्रैवल प्लान से वियतनाम का पैकेज बुक कराते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप ध्यान रखिए कि आपको वैल्यू फॉर मनी तो मिलेगा ही हमारे थ्रू पैकेज, लेकिन सर्विस भी आपको टॉप नॉच मिलेंगी। कि सर्विसेज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, वियतनाम हमारे लिए एक जीरो एस्केलेशन है, हमारी ऑन ग्राउंड टीम मौजूद है। इवन वियतनामीज पीपल आर वर्किंग फॉर ट्रैवल, तो आपको लैंग्वेज का भी इशू नहीं आएगा, सब वेल स्पोकन है, मतलब इंग्लिश अच्छे से जानते हैं जो सबसे बड़ा वो है, तो हमारी ऑन ग्राउंड टीम से आप इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हो। प्लस वो अच्छे से जानते हैं आपकी सारी नीड, की इंडियन क्लाइंट को क्या चाहिए, वियतनामीज फूड चाहिए आप उन्हें बताइए, वो अरेंज करेंगे। इवन आप अगर वियतनामीज खाना आपको नहीं मिल रहा है तो आप कभी भी हमारी ऑन ट्रिप ऐप पे जाके रेज कर सकते हैं कि आपको हेल्प करी जाए इंडियन फूड ढूंढने में। तो हमारे पास हमारे खुद के लिस्ट है वियतनामीज इंडियन फूड के फेमस रेस्टोरेंट की, हम वो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए अरेंज करा सकते हैं कि हमारा ड्राइवर आके आपको इंडियन रेस्टोरेंट लेके जाएगा। तो आपको फूड का भी एज सच इशू नहीं आएगा वहाँ पर अगर आप ट्रैवल प्लान के साथ जाते हैं। और सर्विसेज में तो वैसे इशू नहीं है, अगर ड्राइवर लेट होता है हमारे पास ट्रैवल प्लान ट्रस्ट गारंटी भी है, प्लस ऑन ग्राउंड टीम है। मेरे को नहीं लगता यू कैन गेट रॉन्ग विद ट्रैवल प्लान इफ यू टॉक अबाउट वियतनाम। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कभी भी मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। आप मेरे डेस्टिनेशन एक्सपर्ट को क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मेरा भी आप नंबर किसी से भी ट्रैक लाइन में ले सकते हैं, डेस्टिनेशन एक्सपर्ट से भी। और कभी भी हम और फर्दर क्वेश्चन वो कर सकते हैं।
ठीक है, ओके, थैंक्स एवरीवन। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये सेशन। कोई भी आप लोगों को डाउट हो, मैंने कहा डेस्टिनेशन एक्सपर्ट हैं आपके लिए। बाकी अब नॉर्थ वियतनाम कवर हो गया है। गिव मी अ सेकंड, कुछ और ट्रैवल पार्टनर्स क्वेश्चन के साथ रीच आउट कर रहे हैं। मैं एक खूब सरस ट्रैवल से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडियन होटल्स कौन से अच्छे हैं, मतलब इंडियन होटल नहीं है हमारे पास, इंडियन रेस्टोरेंट है। अगर मैं होटल्स की बात करूं तो वियतनामीज होटल ही है जो हनोई सिटी सिटी सेंटर में है हमारे पास। जैसे हमारा फेमस, आप मैं अपना बेस्ट फेवरेट आपको होटल बताता हूँ, सोजो है। सोजो इज लाइक 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड क्वार्टर एंड 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम ट्रेन स्ट्रीट। तो अगर इन केस आपका, जैसे वियतनाम एक अर्ली राइज करने वाली कंट्री है कि 7 बजे सब जग जाते हैं, 8 PM तक सब क्लोज हो जाता है। उसके बाद आप क्या करें, तो उसके बाद सबसे अच्छा है कि आप ट्रैवल प्लान के साथ हनोई सिटी सेंटर में होटल लें। और उसके बाद आप लोकल खुद ही विजिट कर सकते हैं, रात में आराम से आप ट्रेन स्ट्रीट जा सकते हैं, लोकल मार्केट घूम सकते हैं, आप नॉकसाउंड टेम्पल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बहुत ही अच्छा ये एडवांटेज है। ठीक है, और भी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि हम थोड़ा टाइम को लेके शॉर्ट है अभी। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। आप मेरे को कभी भी मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी है शौर्य.सिंह, शौर्य SHAURYA.सिंह SING@@traplan.com। तो कभी भी आप मेरे को कोई भी अपने डाउट्स क्वेश्चन हो इस ईमेल आईडी पे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली कॉल करके रीच आउट कर दूंगा, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। और बाकी मेरी टीम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा एक लास्ट रिक्वेस्ट कि हम अभी करेंटली एग्जिबिट कर रहे हैं ओटीएम में। तो जो भी हमारे ट्रैवल पार्टनर करेंटली मुंबई में है और ओटीएम में विजिट कर रहे हैं, तो आप जाइए, टीम से मिलिए, कोई भी आपके डाउट हो वहाँ पर डायरेक्टली टीम सॉल्व करेगी। प्लस नए नए आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं ट्रैवलर ने, जैसे अभी वोल्ट एपीआई लॉन्च करा है, तो उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन चाहिए तो आपको लाइव वहाँ पर सब कुछ डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा बूथ नंबर है PI 350। तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में करेंटली टीम, वहाँ पर पूरी टीम मौजूद है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, जब भी आप ओटीएम या ओटीएम के दौरान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जाते हैं, तो PI 350 बूथ नंबर में आपको विजिट करना ही करना है। ओके, thanks a lot everyone for giving your valuable time to me. I hope this session was informative and useful for all of you. Thanks a lot and goodbye. Have a nice day.